Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about discrete mathematics topic, basic counting techniques, inclusion and exclusion. Second, pigeonhole principle. Third, permutation and combination. And two question papers. Of PTU. Now, first topic is the principle of inclusion and exclusion. Principle of inclusion and exclusion क्या है? It is a fundamental counting technique which is used to determine number of elements in union of two or more finite sets by taking overlaps. It ensures that elements which is belonging to multiple sets are counted only once. Second, in simpler terms, we can say you can imagine you have two groups of students, one taking math, one taking science. If you want to know how many students are in either group or both, you can't just add the number in each group because the students taking both math and science would be counted twice. The principle of inclusion exclusion helps you get the correct count by adding the number in each group and then subtracting the number who are in both. Next, principle of inclusion and exclusion is an approach which derives the method of finding the number of elements in the union of two finite sets, and this is used to solve combination and probability problems when it is necessary to find a counting method which makes sure that an object is not counted twice. Now next point is considering two finite sets A and B. We can denote the principle of inclusion and exclusion formula. First, we should be keep in mind this formula which is used for inclusion and exclusion. This is a principle of inclusion and exclusion. N A union B, that is equal to NA plus NB minus NA intersect B. Here NA denotes the cardinality of set A and B denotes the cardinality of set B. N in A intersect B denotes the cardinality of A intersect B. We have included A and B and excluded their common elements. For example, you have given this diagram. Here you can see A, this is a set, this is a B set. And when we consider NA union B, that means it is a whole, equal to, out of this portion is known as NA and this is known as NB. If we take whole A, that is a NA. If we take whole B, that is a NB, and minus NA intersect B. Intersect means its common part. This is a common part of both, that is known as intersect. And we include NA plus NB and exclude NA intersect B. That's why we
called this method in principle of inclusion and exclusion. You can see here, if we have three sets A, B and C, then according to principle of inclusion and exclusion, N union NA union B union C, that is equal to NA plus NB plus NC, and these three are include minus NA intersect B minus NA intersect C minus NB intersect C. All these three will exclude and include NA intersect B intersect C. You can see here, this portion is A intersect B. This portion is A intersect C. This portion is B intersect C. And this portion is A intersect B intersect C. The principle of inclusion and exclusion, and this is represented by this diagram, that is known as Venn diagram. Venn diagram for three sets, and in general form you can say NA1 union A2 union A3 union up to AN equal to sigma N A I intersect AJ plus sigma N A I intersect AJ intersect AK minus plus minus 1 power n minus 1 n bracket start A1 intersect A2 intersect A3 and intersect up to intersect AN. This is a general format of principle of inclusion and exclusion. Now, derangement. What is a derangement? The number of rearrangements if n things are arranged in a row. If you want to arrange n things in a row such that none of them will occupy their original position. None of them will occupy their original position. That is known as derangements. We denote the number of derangements of n distinct things by dn, and dn is equal to n factorial square bracket start 1 minus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial minus 1 over 3 factorial plus up to plus minus 1 power n and 1 by n factorial bracket close square bracket close, where n is greater than equal to 2. We can also define dearrangement as a permutation of objects that leaves no object in its original place. Means no object will own original position. For example, if we start with 1, 2, 3, 4, 5, then 3, 1, 2, 5, 4. This is a dearrangement because 2, 3, 4, 1, 5 is not a dearrangement because 5 is in its original place. But in case 3, 1, 2, 5, 4, all these numbers are not on a original place. So that's why this arrangement is called derangement. And counting the derangement needs inclusion exclusion principle. Now next is, for example, you have given among a group of students 49 study physics, 37 study English, 21 study biology. If 9 of these students study math, physics and English, and 5 students study English, biology, 4 study physics and biology, 3 study physics and English and biology, find the number of students in group.
How many students are present in a group? We have to find out. For solving this question, first of all, you have to assume P represent the number of students. P represent to number of students who study physics, and E represent the number of students who study English, and B represent to number of students who study biology. Number of students in a group, N P union N P union E union B, means we have to find out number of students who in a group who study all these subjects: physics, English, biology. Those students who study only physics, that is 49. Those students who study only English, that is 37. Those students who study only biology, that is 21. And those students who study physics and English, 9. English and biology, 5. Physics and biology, 4. Physics, English, biology only, 3. Now we will be put this formula. NP union E union B is equal to NP plus NE plus NB minus NP intersect E minus NE intersect B minus NP intersect B plus NP intersect E intersect B. This formula is very, very important, which is used for solving the question and to finding number of students in the group. This formula is principle of inclusion and exclusion for counting technique. 49 plus 37 plus 21 minus 9 minus 5 9 minus 4 plus 3, we will find out 92 is the answer. Number of students in the group, that is 92. Now next question, find the number of ways that you can put 7 letters in their respective envelopes such that exactly 3 go into the right envelope. For solving this question, number of ways in which 3 correct envelopes can be selected. Out of 7, you have to select 3 correct envelopes. For this, we will find combination of 7 combination of 3. And now put the formula. 7 factorial over 3 factorial. And you will find out 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial. Here 7 minus 3 factorial. You will find out 4 factorial. 3 factorial into 4 factorial. It right. 4 factorial cut with 4 factorial. Now 7 into 6 into 5 over 3 into 2 into 1. 3 cut with 6, 2 cut with 2, and 7 5s are 35. Then answer will be number of ways in which 3 correct envelopes can be selected, that is 35. D arrangement of remaining 4 envelopes. Letters 9. D arrangement value of 4 in is 9. So total number of ways arrangement 9 into 35, that is equal to 315. Now next question. What do you mean by rearrangements in a combinational mathematics? The number of rearrangements. जब हम जो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स हैं
इफ n थिंग्स आर अरेंज्ड इन ए रो, अगर आप n थिंग्स को एक रो में अरेंज करते हो तो नन ऑफ देम विल ऑक्यूपाई देयर ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं ऑक्यूपाई होते हैं तो उनको डी अरेंजमेंट कहते हैं। और फॉर्मूला क्या इसके लिए यूज होता है, डी एन इजिकल टू एन फैक्टोरियल स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस हाइफन प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 1 पावर n एंड 1/n फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और डी एन क्या है, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है। गिव द प्रिंसिपल इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन, क्या फॉर्मूला यूज होता है प्रिंसिपल और इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन के लिए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी। जो माइनस एन ए इंटरसेक्ट जो है वो एक्सक्लूड यानी कि एक्सक्लूशन के लिए यूज हो रहा है, एन ए और एन बी जो हो रहे हैं वो क्या है, इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं इंक्लूशन एंड exclusion formula. What do you mean by the cardinality of a set? The cardinality of a set is the number of elements in a set. For example, you have to assume a is equal to 1, 2, 3 and 6. You have given 4 digits, 4 elements in a set. So we can say cardinality of set A क्या है, 4 है। Now next है pigeonhole principle. Pigeonhole principle states that if you have more items than container, अगर आपके पास जितने कंटेनर है उससे ज़्यादा आपके पास आइटम्स पड़ी हैं तो एटलीस्ट वन जो ऐसा कंटेनर होगा जिसमें मोर देन वन आइटम्स को रखा जाएगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इफ़ यू हैव n पिजन होल्स तो n+1 पिजन्स होंगे, एटलीस्ट वन पिजन होल जो है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स रखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन टोटल 9 पिजन होल्स, लेकिन 10 आपके पास पिजन्स पड़े हैं, तो इसका मतलब है किसी एक कंटेनर एक बॉक्स में एक होल में जो है 2 पिजन्स होंगे ही होंगे, भी उनको रखना ही पड़ेगा 2 को। 1 पिजन 1 1 1 1 1, एक एक पिजन यहाँ पर रखा, लेकिन इसमें मैंने 2 रख दिए तभी वो कंप्लीट होंगे। वी कैन से n पिजन है तो n+1 क्या, सॉरी n पिजन होल्स है तो n+1 क्या है, पिजन्स है। तो दैट्स वाई वी कैन से कि जो ये प्रिंसिपल है वो ये कहती है कि जो आपके पास आइटम्स है वो मोर देन कंटेनर ही होगी। नाउ नेक्स्ट टाइम प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। जो पिजन और प्रिंसिपल है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में, और पर्टिकुलर इन एरिया जैसे कि ग्राफ थ्योरी आप यूज़ करते हो, एल्गोरिदम यूज़ करते हो, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है और इसको डिरीशेल्स प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और फॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू हैव ए फंक्शन, मान लो आपके पास आपका एक पास एक फंक्शन है एफ दैट मैप्स द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो सेट ए से सेट बी में एलिमेंट्स को रखने जा रहा है, सेट ए में मोर एलिमेंट्स है और देन सेट बी से, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है बी के अंदर ऐसा होगा कि वो मोर देन मतलब इज मैप टू बाय 2 और मोर एलिमेंट्स फ्रॉम ए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ पिजन होल प्रॉब्लम्स की। जैसे बर्थडे प्रॉब्लम है, मान लो इफ़ यू हैव 367 पीपल्स है ना, एटलीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट शेयर द सेम बर्थडे, तो उनमें से कोई 2 ऐसे तो होंगे जिनका बर्थडे सेम होगा, सो देयर आर ओनली 366 पॉसिबल बर्थडे होंगे, तो हम ये कहेंगे ना 366 ही पॉसिबल बर्थडे हैं। तो ये एक पिजन होल प्रॉब्लम है, पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ किया गया। सॉक्स इन ए ड्रॉर, इफ़ यू हैव 10 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, अगर आपके पास 10 ब्लैक सॉक्स के पेयर्स हैं, 10 पेयर्स ऑफ वाइट सॉक्स हैं, यू रेंडमली सिलेक्टेड सॉक्स, आप रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो सॉक्स को, यू नीड टू पिक एटलीस्ट 3 सॉक्स, आपको एटलीस्ट 3 सॉक्स पिक करनी है टू ए गारंटी पेयर ऑफ सेम कलर की हो,
तो यहाँ पर भी आप पिजनहोल प्रिंसिपल को यूज कर दोगे। द पिजनहोल प्रिंसिपल इज ए सिंपल बट पावरफुल टूल है फॉर प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कलेक्शन एंड मैपिंग सम। जो प्रिजन होल प्रिंसिपल है वो एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कॉम्बिनेशनल कॉम्बिनेट्रिक्स और मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, और ये बताता है कि इफ़ मोर आइटम्स आर पुट इन ए फ्यूअर कंटेनर देन द नंबर ऑफ आइटम्स एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम। सो सिंपल प्रिंसिपल है, ये इम्प्लीकेट करता है एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और इंजीनियरिंग है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पिजनहोल प्रिंसिपल्स की एक और डेफिनेशन। पिजनहोल प्रिंसिपल कैन बी फॉर्मली स्टेटेड एज फॉलो। पिजनहोल प्रिंसिपल इज ए यूजफुल इन काउंटिंग द मेथड। कहाँ पर इसको यूज किया जाता है? काउंटिंग मेथड में। इन ऑर्डर टू अप्लाई द प्रिंसिपल वन हैज़ टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना होगा कि विच ऑब्जेक्ट्स विल प्ले द रोल ऑफ पिजन, भी कौन सा ऑब्जेक्ट जो है पिजन का रोल प्ले करेगा। विच ऑब्जेक्ट्स विल प्ले द रोल ऑफ पिजन होल, और कौन सा ऑब्जेक्ट पिजन होल का रोल प्ले करेगा। पिजन होल प्रिंसिपल एक सिंपल येट पावरफुल कॉम्बिनेट्रिक्स टूल है जो यूज़ की जाती है एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इसकी एप्लीकेशंस जो है वो एक्सटेंड टू द प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी और बियॉन्ड। नाउ नेक्स्ट, ये यहाँ पर पिजन्स की ही प्रॉब्लम दे दी है। सपोज आपके पास एक फ्लॉक ऑफ 20 पिजन्स फ्लाई कर रहे हैं इनटू ए सेट ऑफ 19 पिजन होल्स टू रूस्ट। बिकॉज देयर आर 20 पिजन्स बट ओनली 19 पिजन होल्स, सो एटलीस्ट वन ऑफ दीज 19 पिजन होल्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स इन इट। इनमें से कोई एक, जैसे ये वाला है, इसमें 2 पिजन्स रखे हुए हैं। तो वही वो कह रहा है कि टू सी वाई दिस इज ट्रू नोट दैट इफ ईच पिजन होल हैड एट मोस्ट वन पिजन, अगर हर एक में एक एक है, एट मोस्ट 19 पिजन होने चाहिए, वन वन पर होल could be accommodated, and this illustrates a general principle which called the pigeonhole principle, because which states that if there are more pigeons than pigeonhole there must be at least one pigeonhole with at least 2 pigeons. Now next is a पिजन होल प्रिंसिपल थ्योरम। थ्योरम वन क्या कहती है कि अगर ए इज एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल है, तो वहाँ वेयर ए इज नॉट एन इंटीजर, तो ए इंटीजर नहीं होगा, देन एटलीस्ट वन पिजन होल कंटेन सील ऑफ राउंड ए मीन्स की स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए पिजन कंसीडर किया जाएगा। रिमेनिंग जो पिजन होल्स है they contain at most floor of a, largest integer less than equal to a pigeons को hold करेंगे। या फिर we can say that if n plus 1 objects put into n boxes then at least one box ऐसा होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा objects को रखा जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट फार्मूला जो फॉर्मुलेशंस है प्रिंसिपल की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सपोज x और y जो हैं दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, इसमें फंक्शन लेट एफ इज जो है ए इम्प्लाइज बी है, सच ए फंक्शन है इफ एक्स हैज़ ए मोर एलिमेंट, एक्स में मोर एलिमेंट्स है देन वाई, देन एफ इज़ नॉट ए वन टू वन। हम ये नहीं कहेंगे कि एफ जो है वन टू वन है, क्यों? क्योंकि एक्स में मोर एलिमेंट्स है देन वाई। इफ़ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन एफ इज़ ए ऑन टू, तो हम उसको एफ को बोलेंगे ऑन टू है, देन एफ इज़ वन टू वन, और वो वन टू वन भी है। If x and y have same number of elements, if f is 1 to 1 then f is on to। अगर f x और y के नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1 है, एंड जो f है वो ऑन टू भी है। Now next is in how many people among 2 lakhs are born at the same time। फिर 2 लाख में से कितने पीपल जो है सेम टाइम पर बोर्न हुए होंगे, ये पता करना है हमने। और पिजन प्रिंसिपल को यूज़ करना है इसके लिए। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो बोर्न है सेम टाइम पर वो 2 lakhs पीपल है। टोटल नंबर ऑफ पीपल 2 lakhs बन गए। नंबर ऑफ सेकेंड्स जो है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो ये बन गए 83,400
400 जो है नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए डे है। तो पिजन होल जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि अगर देयर आर एन आइटम्स एंड एम कंटेनर्स, एन इज ग्रेटर देन एम, अगर एन एम से बड़ा है तो उस केस में एटलीस्ट एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें जो है एटलीस्ट एन आइटम्स होंगी। स्टेप वन में ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स जो कि बोर्न होंगे सेम टाइम पर, एंड बाय अप्लाइंग द पिजनहोल प्रिंसिपल। एन इक्वल टू 2 lakhs ले लिया हमने नंबर ऑफ पीपल, फिर एम इक्वल टू 86,400 नंबर ऑफ सेकेंड्स ले लिए इन ए डे, और मिनिमम पीपल जो बोर्न हुए सेम टाइम पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन को एम से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 2.31 आ गया। और राउंड फिगर करके हमारे पास कितने पीपल आ गए, 3 ऐसे पीपल होंगे जो सेम टाइम पर पैदा हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक ए, 21 पीपल जो हैं वो ए को लाइक करते हैं, 26 पीपल बी को लाइक करे, 29 पीपल जो है सी को लाइक करते हैं, और 14 पीपल ऐसे हैं जो ए और बी को लाइक करते हैं, 14 पीपल ऐसे हैं बी और सी को लाइक करते हैं, 12 पीपल ऐसे सी और ए को लाइक करते हैं, एंड 8 पीपल ऐसे हैं जो ए बी और सी तीनों को लाइक करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट मैनी पीपल लाइक ओनली सी। नाउ use the inclusion exclusion principle, and for this we have to find only c नंबर ऑफ पीपल्स इन ओनली सी हमें फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, सी माइनस ए इंटरसेक्ट सी ओनली, बी इंटरसेक्ट सी ओनली, प्लस ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, और कंप्यूट करेंगे ए इंटरसेक्ट सी ओनली एंड बी इंटरसेक्ट सी ओनली। पहले ए इंटरसेक्ट सी ओनली कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्ट जो सी है उसमें से आप ए इंटरसेक्ट बी और इंटरसेक्ट सी को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्ट सी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्ट सी ओनली फाइंड करना है। बी इंटरसेक्ट सी जो होगा उसमें से आपने ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी वाले वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास बी इंटरसेक्ट सी ओनली भी आ जाएगा। ओनली सी फाइंड करने के लिए 29 में से आपने सी की कितनी वैल्यू थी 29, उसमें से आपने 4 + 6 + 8 को माइनस किया तो आपके पास 11 वो पीपल्स आ गए जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं। डिफाइन ए परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप को फाइंड करने के लिए ये परमुटेशन ग्रुप क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट्स जो है परमुटेशन ऑफ ए गिवन सेट है और हुज ग्रुप ऑपरेशन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन होती है। मोर फॉर्मली हम ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लो एक्स जो है नॉन एम्प्टी सेट है और ए परमुटेशन ऑफ एक्स क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। फ्रॉम एक्स टू इटसेल्फ, अपने एक्स से इटसेल्फ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। हम ए फंक्शन जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया एक्स इम्प्लाइज एक्स है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स जो है वो एक यूनिक एलिमेंट है एक्स के। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इमेज ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ। देन परमुटेशन ग्रुप जो ग्रुप जी जो है सेट एक्स के ऊपर इज ए सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ एक्स एम, और द आइडेंटिटी परमुटेशन इज इन जी एम। और दूसरी तरफ से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो बिलोंग करता है जी के साथ, देन इनवर्स परमुटेशन उसको बोलेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और जो कि बिलोंग करता है जी के साथ। हम अगर हमें कंपोजिशन बताना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ स्टैंडर्ड डेविएशंस कॉमा ये वाला सिंबल एंड देन बिलोंग्स जी। तो ये कंपोजिशन को दिखा रहा है ये वाला सिंबल, यानी कि ऐसा सिंबल जब लगा लोगे तो वो कंपोजिशन को शो करेगा। और दैट इज, तो ये हम कहेंगे कि ये जी क्या है, एक सब ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप का एस एक्स का, और ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एक्स है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लेट आपके पास x इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 जो है एलिमेंट्स गिवन है एक्स सेट के और सिमेट्रिक ग्रुप
जो इसमें सिमेट्रिक ग्रुप है उसको S3 का नाम दिया गया, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन। जो ग्रुप है ऑल परमुटेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स के, वो कितने हैं? 6 है। इसमें आइडेंटिटी क्या है? 1 2 3, और ट्रांसपोजिशंस क्या है? 1 2 1 3 और 2 3, और 3 साइकिल्स क्या बन रही है? 1 2 3 हो सकता है या 1 3 2 हो सकता है। तो एनी सबसेट ऑफ दीज सेटिस्फाई ग्रुप प्रॉपर्टीज अंडर कॉम्पोजिशन ऑन ए परमुटेशन ग्रुप। और जो परमुटेशन ग्रुप मॉडल है वो क्या है? सिमिट्री है, इसलिए इट इज ए सेंट्रल इन ए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय ए। जब हम ये ऐसे लिखते हैं ए मल्टीप्लाई ए, दैट मीन्स ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। तो आपके पास एक सेट गिवन है, आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे बनाओगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? आपने क्या करना है कि जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन है उनके हर एक दूसरे के साथ सारे पेयर्स बनाने। पहले तो अपने आप के साथ बनाओ। 0 0 आ गया, 1 1 आ गया, और 3 3 आ गया। फिर उसके बाद 0 का 1 के साथ, 0 का 3 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 3 का 0 के साथ, 3 का 1 के साथ पेयर। जितने भी पेयर्स बनते हैं वो सारे बना लेने, वो क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू इज बी। अगर पी है तो क्यू है, और इफ क्यू नहीं है तो पी भी नहीं है। मतलब इफ पी implies q, then not, if not q then we can say not p। तो ये क्या है? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। मीन्स इफ यू आर पनिश्ड देन यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। अगर आपको पनिशमेंट दी गई है तो इसका मतलब है कि आपने होमवर्क नहीं किया हुआ है। पावर सेट का क्वेश्चन आ गया। तो पावर सेट को ऐसे डिफाइन करना है अपने। पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। जितने भी इसके सबसेट्स बनते हैं उन सब के सेट को बोलते हैं पावर सेट, जिसमें एम्प्टी सेट भी आता है और सेट इटसेल्फ भी आता है। जैसे पावर सेट जो है ऑफ थीटा का हमने बनाना है, तो यहाँ पर थीटा भी आएगा। फिर पी थीटा ऑफ थीटा, तो इसमें क्या है? थीटा कॉमा थीटा का अलग से सेट बना दिया हमने। तो यहाँ पर सेट कंटेन्स वन एलिमेंट एंड विच इज एन एम्प्टी सेट इटसेल्फ। और पीजन होल प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या लिखोगे? इफ एन आइटम्स आर पुट इन ए वन एम कंटेनर, तो एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन एम होनी चाहिए। एटलीस्ट वन कंटेनर ऐसा होगा जिसमें मोर देन वन आइटम को रखा जाएगा, तो वहाँ वो क्या है? पीजन होल प्रिंसिपल। अगर उन्होंने बोला यूक्लिडियंस एल्गोरिदम यूज़ करके जीसीडी फाइंड करो, तो आपने कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 4 4 4 1 4 6 6 2 को। मतलब छोटी वाली अमाउंट बाहर रखनी है, बड़ी अंदर रख के डिवाइड कर लेना। 1 पर गया 414 यहाँ पर आ गया। 12 में से 4 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 5 और 6 में से 4 गए 2। तो अब इसको लिखना कैसे है? 414 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर वैल्यू को यहाँ पर लिखोगे। यानी कि आप ये कहोगे कि ये आ गया आपके पास डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला लगा के इसको लिखना है। अब फिर अगेन 414, ये वाला 414 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन ये 1 पर जाएगा, 248 यहाँ पर आ गया। 14 में 8 गए 6, और 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1। फिर अगेन 248 से डिवाइड करो, और इसको लिखने का तरीका फिर 248 मल्टीप्लाई 1 प्लस 166 आ गया। फिर 1 पर जाएगा। तो ये ऐसे आपने सॉल्व करते जाना, और जब तक आपके पास जीरो रिमाइंडर नहीं आता तब तक इसको सॉल्व करोगे। और जब जिसके साथ जीरो रिमाइंडर आया उसकी ये वाली वैल्यू आपका आंसर हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस।
अगर क्वेश्चन आ जाए कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस का, तो उसको रिप्रेजेंट करना K5 के साथ। एक कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस जो है उसमें एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड होते हैं एक एज के द्वारा, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्टिसेस उसमें 5 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस कैसे फाइंड करोगे, आपने क्या करना है, 5 कैसे फाइंड करोगे इसको, 5C2 करके। तो यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल तक, 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, इसको इसकी ख़त्म। 2 2 ज़ द 4 5 2 ज़ द 10। तो 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 निकाल के आपने इसका क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ एजेस। और क्वेश्चन अगर ये आ जाए, डज ए सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट विद डिग्री 1 1 3 4 6 7 डिग्री के साथ एग्जिस्ट करता है, तो कैसे सॉल्व करोगे। इन ए सिंपल ग्राफ मैक्सिमम डिग्री जो है किसी भी वर्टेक्स की वो एट मोस्ट n-1 होती है। क्या होती है, n-1 होती है, जहाँ पर n नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। अगर आपके पास वर्टिसेस कितने हैं, 6 है, तो मैक्सिमम जो डिग्री उसकी आएगी क्या आएगी, 6-1 दैट इज 5 डिग्री आएगी। डिग्री 7 जो है इज नॉट पॉसिबल इन एन ग्राफ विद ओनली 6 वर्टिसेस, और नो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा प्रूफ करना है अपने। तो अगर आपके पास ऐसे गिवन हो a प्लस बीज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बीज ट्रांसपोज, तो यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ इम्प्लीमेंट आपने करना है, ठीक है। पहले आपने ए और बी की वैल्यूज़ ले ली, 0 1 0 1 0 0 1 1। पहले a प्लस 1 बी निकाला, दोनों को प्लस किया, दोनों को 0 और 0, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1, और a प्लस 1 का ट्रांसपोज कर लिया a प्लस बी का, तो रिवर्स लिख लें 1 0 0 0, फिर a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज निकाला, फिर a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज सोल्व किया। आप चेक करोगे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने लॉजिकल इक्विवेलेंसीज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट क्या है, नॉट, ये नेक्स्ट पेज पर लिखने जा रही हूँ मैं, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, नॉट P और नॉट P एंड Q, और नॉट P एंड Q। फिर उसके बाद है एंड नॉट P एंड नॉट Q। प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कैसे प्रूव करोगे, अगर तो इसके टेबल के थ्रू करना है तो ऐसे कर लो, 0 1 0 1 1 1, पहले P नॉट P निकाल लो, 1 1 0 0, फिर क्या करना है, नोट P एंड Q, नोट P एंड Q, 0, यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 1 1, 1 कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज सभी 0। अब फिर उसके बाद क्या करना है आपने, P के साथ इसका और कर लेना, ठीक है। P के साथ 0 0 0 0, फिर इसका नोट कर लेना, तो ये क्या आएगा, 1 1 1 1। अब ऐसे ही आपने इधर वाला सॉल्व किया, नोट P एंड यहाँ पर नोट Q निकाल लेते हैं, 1 0 1 0, नोट P एंड नोट Q करना है, ये दोनों 1 1 1, 0 और 0 एंड 1, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, और करना था हमें,
जस्ट ए मिनट। इसका पी के साथ और 0 1 1 1, यहाँ पर 1 0 0 0। अब करते हैं 1 का 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0, सेम आंसर आ गया। दैट मीन्स कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, नॉट पी और नॉट पी एंड क्यू है आपके पास, तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन की, नॉट पी एंड नॉट ऑफ नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड नॉट, नॉट के साथ खत्म पी और यहाँ पर और का साइन, फिर ये क्या हो गया, नॉट क्यू। और यहाँ पर कैसे हो गया ये, इसको इसके साथ हमने जब सोल्व किया, इसमें आ गया नॉट पी और एक मिनट, जब ब्रैकेट इसके साथ ओपन की तो ये 0 हो गया, और जब इन दोनों को इसके साथ किया, इसके बाद इसको इसके साथ किया, नोट पी एंड नोट क्यू, ये हमारे पास रह गया। पहले इसके साथ ले लिया, फिर इन दोनों को इसके साथ ले लिया, यहाँ पर और का सिंबल, ये फाइनली हमारे पास प्रूव होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गिवन सेट ए, सेट ऑफ इंटीजर्स, रिलेशन आर डिफाइन करना है ऑन ए बाय ए, और ए बी रिलेशन सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना। वी आर टू प्रूव दैट आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, कि क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए चेक करो रिफ्लेक्सिविटी। पहले ए रिलेशन आर क्या है, अगर मैं लेके चलती हूँ कि आर एक रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव का रूल ये कहते हैं कि ए बी अगर आर से बिलोंग करता है, ए बी आर ए बी है, तो इसका मतलब फॉर ऑल ए और बी जो है वो ए इंटू ए के साथ बिलोंग करते हैं, और ए बी इक्वल टू बी ए ही होगा, तो ही हम इसको बोलेंगे ये ट्रू है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि सेम होने चाहिए नंबर्स, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया, सो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्री चेक करो, ए बी रिलेटेड टू रिलेशन सी डी, तो सी डी रिलेशन ए बी है, वो कहता ए डी इक्वल टू बी सी अगर है, तो वी वांट टू शो कि जो सी बी है वो भी डी ए के इक्वल है। तो इसका मतलब सेम इक्वेशन है, जस्ट रीअरेंज किया है, तो आर बी सिमेट्रिक है। फिर उसके बाद हमने चेक किया ट्रांसिटिविटी को, अगर ए कोमा बी रिलेटेड है, मतलब रिलेशन उसका सी कोमा डी के साथ है, और दूसरी साइड पर आप ये कह रहे हो कि सी कोमा डी जो है वो किसके साथ उसका रिलेशन है, ई कोमा एफ के साथ है, और फिर आप कहते हो कि ए कोमा बी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, ई कोमा एफ के साथ, क्योंकि इनमें दोनों ये कॉमन है, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेशन है, तो ये प्रूव करता है कि ये भी सही है। तो ट्रांजिस्टिविटी भी है। सो आर इज ए ट्रांजिस्टिव, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंस है आंसर। नाउ नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट है कनेक्टेड ग्राफ, प्लानर ग्राफ के बारे में।
फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, प्लानर ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बोल रहा है। वर्टेक्स कलरिंग ऑफ ए ग्राफ और रूटेड ट्री, इसके बारे में पता करना है। तो कनेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं? नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज ए कनेक्टेड ग्राफ? कनेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर, जिसमें कहता है देयर इज ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस के क्या है, जो है पेयर्स हैं। एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वी कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। भी एक वर्टेक्स से जब आप दूसरे वर्टेक्स पर ट्रैवल कर सकते हैं और ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टेड ग्राफ। ये डायग्राम की एग्जांपल आप दे सकते हो कि इसमें ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये ग्राफ है। और इफ़ यू हैड टू कंपोनेंट्स लाइक ए बी सी डी, तो दिस इज़ नॉट ए कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ए सिर्फ बी के साथ कनेक्टेड है और सी डी के साथ कनेक्टेड है, बट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको कनेक्टेड ग्राफ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ क्या होता है? कैसा ग्राफ होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है प्लेन के ऊपर विदाउट एनी एजिज, बिना एजिस के क्रॉस किए, एक्सेप्ट एट दी वर्टिसेस। ए ट्रायंगल और ए स्क्वायर विद वन डायगोनल्स जो है, ये क्या है हमारा? प्लानर ग्राफ। मीन्स कि जैसे ये है, ये भी प्लानर ग्राफ है। अगर ये बनाया है ऐसे, तो ये प्लानर ग्राफ है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कर दूं तो ये नॉट प्लानर ग्राफ है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ ऐसे कर दूं और इसका ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके ले लूं, तो ये भी, ये क्या है? प्लानर ग्राफ बन जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद है वर्टेक्स कलरिंग ऑफ ए ग्राफ। जो वर्टेक्स कलरिंग है इज ए असाइनमेंट ऑफ कलर्स टू वर्टिसेस। भी जो कलर आप वर्टिसेस को असाइन करते हैं सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस, भी दो एडजेसेंट, जैसे ये है और ये है, ये इन दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए, इधर से इसके साथ भी मैच नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसका रेड कलर होगा, इसका ग्रीन रख लिया, इसका ब्लू। कितने कलर इसमें यूज़ हो रहे हैं? 3 कलर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर इधर से हम देखें तो इसका कलर इसके साथ नहीं मैच करना चाहिए, इसे इधर नहीं होना चाहिए, इसका इधर से नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर मैं रेड ले रही हूँ तो इसका मुझे ग्रीन लेना पड़ेगा। और इधर मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर येलो रख सकती हूँ, यहाँ पर भी येलो रख सकती हूँ। तो इसके भी कितने कलर हो गए? 3 कलर्स हो गए। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास real world application. Scheduling problems where tasks that conflict can't happen at the same time and are connected by edge, उनको edge और color के साथ represent करेंगे टाइम स्लॉट्स के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रूटेड ट्री किसे कहते हैं? रूटेड ट्री एक ऐसी टाइप ऑफ ट्री है जिसमें कनेक्टेड साइक्लिक ग्राफ बनी होती है, और जहाँ पर एक वर्टेक्स जो है वो डेजिग्नेट करता है एज ए रूट, और एवरी एज जो है वो डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट्स अवे फ्रॉम और टूवर्ड्स द रूट, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ए क्या है? हमारा रूट है, और ए से बी, बी से सी, ए से बी, ए से सी, ए से डी आ रहा है। अब जो सी है वो किसका रूट बन गया? ई का रूट बन रहा है, लेकिन सी का रूट कौन है? ए है। तो यहाँ पर ए इज ए रूट है, इट्स ब्रांचेस बी सी डी है, सी फर्दर ब्रांचेस है ई की,
एंड स्ट्रक्चर टू बी हायरार्किकल। एंड एप्लीकेशन कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, फाइल सिस्टम, फैमिली ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, बाइनरी सर्च ट्री, इन ए कंप्यूटर साइंस इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है शो दैट सेट। सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हमें गिवन है फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिटर्न टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के साथ लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले आपके पास गिवन क्या है, g इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इज गिवन है। फिर उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो शो करता है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 हमें शो कर रहा है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 6 है। तो फॉर प्रूव करने के लिए हमें मॉड्यूलो 7 के साथ ये मल्टीप्लाई है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर फाइंड करना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी फाइंड करनी, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, इनवर्सेस फाइंड करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव एबिलियन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सबसे पहले जब मैंने क्लोजर इम्प्लीमेंट किया, क्लोजर का रूल क्या कहता है कि ए और बी अगर जी के साथ बिलोंग करते हैं, तो जब हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड मोड उसका 7 के साथ जब लिया जाएगा, तो जो वैल्यू आई है वो उस ग्रुप के साथ बिलोंग कर रही है, ये फाइंड करनी है। अब आपके पास वैल्यूज क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने पहली वैल्यू ली है 2 × 3, दैट इज ए 6। 6 को मोड किया 7 के साथ, 6 मोड 7। 7 जब हमने इसको डिवाइड किया, देखो यहाँ पर 6 रखा 7 के, 7 जीरो ज़ा 0, 6 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है जी के साथ। 4 × 5 20 होता है, 20 को मैंने 7 के साथ मोड किया, 7 2 ज़ा 14 होता है। 6 फिर मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, 6 भी ग्रुप में है। फिर मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आया, 36। 36 को 7 से किया, 7 5 ज़ा 36 होता है, ओ 7 5 ज़ा 35 होता है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 बिलोंग टू ग्रुप, यस यू कैन चेक दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी मोड 7 बिलोंग्स टू जी, यस। तो इसलिए ये क्लोजर होल्ड कर रहा है, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया इसके ऊपर, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो, यहाँ पर मोड ये वाला साइन 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2 3 4 5 6 ले लिया। अब 1 × 1 1 आया, 1 को 7 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 1 को 7 से डिवाइड किया, 7 जीरो ज़ा 0, 1 रिमाइंडर। फिर उसके 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, तो 7 से जब किया 7 0 ज़ा 0, 2 ये आएगा यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 10 में से 7 गए 3, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 7, ये 3 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 रिमाइंडर, 4 3 ज़ा 12, 5 रिमाइंडर, 6 3 ज़ा 18, 18 6 3 ज़ा 18, और 18 को 7 से, 7 2 ज़ा 14, 4 रिमाइंडर। ऐसे ही आपने ये सारे करके देख लेने हैं, जो वैल्यूज़ आ रही है क्या वो ग्रुप में है, यस, तो क्लोजर है, ठीक है। तो ऐसे ही एसोशिएटिविटी भी देखनी है, उसमें रूल इम्प्लीमेंट करना है, A × B × C करके, और फिर उसके बाद फाइंड करना है कि N = A × B × C करने पर जो वैल्यू आती है क्या वो दोनों ग्रुप से बिलोंग करती है, अगर यस तो एसोशिएटिविटी होल्ड है। नेक्स्ट उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मॉड्यूल 7 इज ए 7 के साथ डिवाइड करने पर क्या हमारे पास 1 आता है, यस आता है 1, तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या है, 1 है। नाउ नेक्स्ट इज ए
इन्वर्स इन्वर्स में क्या करना है, ए इंटू ए का इन्वर्स, इन्वर्स इंटू वन आना चाहिए। वन जो है मोड के, वन का मोड सेवन के साथ कर निकालने पर क्या ग्रुप से बिलोंग करता है, यस। वन इंटू वन वन, टू इंटू फोर एट, रिमाइंडर क्या बचा वन, थ्री फाइव ज़ा 15, रिमाइंडर क्या बचा वन, सिक्स इंटू सिक्स, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर वन। तो टू एंड फोर बोथ आर द इनवर्स, थ्री एंड फाइव ऑल्सो इनवर्स इज वन, और सिक्स इज इट्स ओन इनवर्स। नाउ नेक्स्ट इज ए commutativity abelian, multiplications modulo n is commutative, a इंटू बी को मोड से सेवन से डिवाइड किया, फिर बी इंटू ए करके भी सेवन से डिवाइड किया, क्या आंसर सेम आ रहे हैं, तो कम्यूटेटिव है। सो वी कैन से जी इज ए क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड बाय सेवन, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, एवरी एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेवन है, ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव है। सो वी कैन से जो जी कोमा मल्टीप्लिकेशन मोड सेवन है इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट टू है क्या वो इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया, वी एज्यूम दैट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट टू प्रूव, स्क्वायर रूट टू इज ए रैशनल है, हम मान के चलते हैं पहले कि रैशनल है, सो दैट दिस इज लीड्स टू ए कॉन्ट्राडिक्शन। फर्स्ट स्टेप में एज्यूम किया रूट टू क्या है रैशनल है, फिर हमने रूट टू को किसके इक्वल रखा, ए ओवर बी के इक्वल रखा, फिर उसके बाद उनकी बोथ साइड स्क्वेयरिंग की है, ठीक है, बोथ साइड स्क्वेयर किया तो टू रूट रूट स्क्वेयर के साथ खत्म हो गया, टू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमने टू इक्वल टू क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स को टू के साथ, तो ये वाली वैल्यूज आ गई, ए स्क्वेयर जो है इवन है बिकॉज इट्स टू टाइम्स समथिंग, एंड देन ए मस्ट ऑल्सो बी इवन बिकॉज स्क्वेयर ऑफ ओड नंबर ओड होता है। सो ज्यूम करके चलो कि ए इक्वल टू टू के फॉर सम इंटीजर के लिए सब्सटीट्यूट किया, उसको इक्वेशन में वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास इतनी वैल्यूज आ गई। तो बी स्क्वेयर जो है बी इज इवन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, वी नाउ हैव बोथ ए एंड बी इवन एंड मीनिंग दे हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू, वी एज्यूम दैट ए बाई बी इज ए लोएस्ट टर्म्स। सो कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होगी कि हमारी जो एजम्पशन है रूट टू इज ए रैशनल मस्ट बी फॉल्स एंड रूट टू इज ए इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं पीटीयू के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। Find the number of arrangements of the letters of word independence in how many of these arrangements all the vowels is always occur together and vowels never occur together। तो फर्स्ट स्टेप में अपने लेटर्स को काउंट कर लेना है, टोटल लेटर्स है 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड, आई रिपीट वन टाइम, एन रिपीट थ्री टाइम, डी रिपीट टू टाइम, ई रिपीट फोर टाइम, पी रिपीट वन टाइम, जितने जितने टाइम रिपीट कर रहा है उतने टाइम फैक्टोरियल लिख कर मल्टीप्लाई कर दो नीचे से और सॉल्व करके हमारे पास आंसर इतना आ जाए। 12 का फैक्टोरियल ये आ रहा है और 3 फैक्टोरियल 6 है, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24 है, सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर इतना आ जाएगा। नाउ थैंक यू, if you like this video please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos। और नेक्स्ट वीडियो इस नेक्स्ट आगे की वीडियो जो है मैं इसके बाद पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू।